Hello and welcome to the English class. The topic for discussion today is determiners. So before moving on, let us know what is determiner is. So what is determiner? A determiner is a word that comes before a noun and modifies its meaning. Determiners function like adjectives. They are also called as fixing words. तो बच्चों डिटरमाइनर का मतलब हिंदी में हम कहते हैं निर्धारित करना या फिर तय करना। किसी भी नाउन से पहले डिटरमाइनर आता है और उस वर्ड को वो मॉडिफाई करता है या फिर संशोधित करता है। नेक्स्ट वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटरमाइनर्स हियर। इट मे डिटरमाइन और फिक्स अ प्लेस, पर्सन और thing. It may identify two or more persons or things. It may precede numerals or objects. It may indicate a quantity or amount. Some examples are there which are taken from the textbook of Chhattisgarh board, page number 21. First example is, close the door, please. I have got a friend in Canada. This is my house. Little knowledge is a dangerous thing. Their bus is late. In these 5 examples, we can see some of the underlined words are there. Actually, these underlined words are called determiners. You can see these words are coming just before the nouns. Here you can see door is a noun, friend is a noun, house is a noun, knowledge is a noun, bus is a noun. Let us see some more examples. Have you seen my keys? Keys is noun. There are few students in the class today. Students again a noun. I don't teach every day. Here we are associating the word every day with the word teach here. I go for a walk 2 days a week. Have you got any book for me? So all these underlined words are actually the determiners. ये word हमारे noun को निर्धारित कर रहे हैं या बता रहे हैं कि हम उसको modify कर रहे हैं, उनका संशोधन किया जा रहा है. The function of determiner is performed by the following. Articles. You all know about the articles a, an and the. The more details we'll do in the next video about articles. Let's see the next one, demonstratives. This, that, these and those. Demonstratives को हम pointing out determiner भी कहते हैं. Next comes possessives, or it shows the belongingness. My, your, his, her, its, own, your, their. These are all possessives. Next is the quantifiers. Quantifiers tells the quantity of the noun, like some, any, few, little, much, many, each, every, and so on. Let us see in the next clip about the demonstrative. Here a table is given. You can see the words demonstrative or the pointing determiners जो point कर रहा है, जैसे this is used for singular noun and which shows the things which are nearby to you, and the word that shows the thing which is far to you. Now comes the word these. These is in the plural form and it shows the words which are near to you. And those is again used for the plural, which shows the word which are far to you. Some quantifiers are used only with countable nouns and some only with uncountable nouns. Some can be used with both.
अब प्रश्न ये है बच्चों कि काउंटेबल नाउन्स क्या है और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकें उसको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, जैसे बॉयज, ओके, बुक्स हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, मिल्क, इसको हम गिनती में नहीं गिन सकते। क्वांटिफायर्स में सम एक ऐसा वर्ड है जो हम काउंटेबल के लिए भी यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज करते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर। देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। आप देख सकते हैं जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है नाउन और उसको प्रिसीड कर रहा है हमारा डिटरमाइनर क्वांटिफायर अ फ्यू, ओके। बॉयज हम काउंट कर सकते हैं तो फ्यू काउंटेबल नाउन के अंदर आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, देयर इज लिटिल वाटर इन द कप। वाटर हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर दैट वी आर यूजिंग लिटिल। देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, there is some milk in the cup. In the both example you can see the word some is used here. In both of them you can see boys is the countable noun and milk is uncountable. दोनों के लिए हम यहाँ पे some word use करते हैं। Fill in the blanks with some or any. आपकी बुक में दिया है कुछ एग्जाम्पल्स जो बोर्ड के मद्देनजर आते हैं ये क्वेश्चंस, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि सम हम कहाँ लगाएंगे और एनी हम कहाँ लगाएंगे। जैसे हमने डिस्कस किया, सम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है और एनी जो है वो भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ लगता है, बट डिफरेंस ये है कि एनी हम जो जब हम लगाते हैं तब हम नेगेटिविटी देखते हैं। लेट अस सी इन द एग्जांपल्स। वुड यू लाइक सम मिल्क? मिल्क as you know is uncountable, but यहाँ पे हमने यूज किया some, कुछ। There are some books, books हम देख सकते हैं काउंटेबल है, इसके लिए हमने यूज किया कुछ books। No, I don't want any book, यहाँ पे भी हम देखते हैं बुक लिखा है, बट उसके साथ हम एक वर्ड और देखते हैं, वो है I don't want। यहाँ नेगेटिव आ गया, जहां नेगेटिव हम देखते हैं आप लिख दीजिए वहां पे any। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she wants some papers to write a story। उसको कुछ पेपर्स चाहिए एक स्टोरी लिखने के लिए, तो पेपर्स अगेन काउंटेबल, उसके साथ हमने लगा दिया some। They do not have any money with them। मनी जो है वो अनकाउंटेबल होता है और हमने एनी क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था। दे डू नॉट हैव, नॉट वर्ड शोज द नेगेटिविटी, ओके। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू। अब इसमें क्या डिफरेंस है? लिटिल और जो फ्यू है ये हमको नेगेटिव आइडिया देता है, अ लिटिल, अ फ्यू हमको पॉजिटिव आइडिया देता है। First example, let us see the first example. They are not happy because little food is left with them. Food आप देखते हैं, food is uncountable. थोड़ा सा food उनके लिए बचा था। They are not happy, वे खुश नहीं थे। तो not happy shows the negativity. जैसे हम पहले देखे थे, little और few किस लिए यूज होता है? नेगेटिव आइडिया शो करने के लिए। तो हमारा जो नाउन था यहाँ पे फूड वो अनकाउंटेबल था और हमने यहाँ पे नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे, इसलिए हमने वहां पे उसको लिटिल लिखा। नेक्स्ट आता है, शी इज क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ। क्वाइट सेटिस्फाइड शोज कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है। शी हैज डन इट बेटर, जो वर्ड है वो नाउन, उसके सामने हमने लिखा अ लिटिल। अ लिटिल लिखने का तात्पर्य यही है कि ये सेंटेंस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन को शो कर रहा है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है। ये वर्ड हमको शो करता है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा अ लिटिल।
नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं राजू हैज मेड फ्यू मिस्टेक्स। मिस्टेक्स एक नाउन ऐसा वर्ड है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जहां काउंट कर सकते हैं वहां पे आप फ्यू वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे हमने फ्यू वर्ड क्यों लिखा? बिकॉज दैट्स वाई ही इज सैड। ये जो वर्ड है सैड, ये इसका नेगेटिव आइडिया दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्यू वर्ड लिखा। नेक्स्ट देखेंगे, ही हैज अ लिटिल होप टू गेट सक्सेस। होप अगेन अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिनती में नहीं गिन सकते। और यहाँ पे वर्ड सक्सेस हमको एक पॉजिटिव आइडिया दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड अ लिटिल लिखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू डिस्कस। पॉइंट्स हमको बता रहा है कि ये हम काउंट कर सकते हैं। टू डिस्कस स्टिल टू गेट, अभी भी आशा है कि हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट ला सकें। ओके, तो जहां पॉजिटिव आइडिया है और जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके सामने हमने लिख दिया a few। तो मोरओवर हम ये समझते हैं कि लिटिल और फ्यू एक ही जैसा है, स्लाइट सा डिफरेंस है। बस आपको ये देखना है कि आपका जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। यदि अनकाउंटेबल है तो लिटिल लिखेंगे, काउंटेबल है तो फ्यू लिखेंगे। यदि नेगेटिव है तो लिटिल लिखेंगे, यदि पॉजिटिव जा रहा है तो अ लिटिल। वैसे ही फ्यू के साथ भी। ओके, इंसर्ट मच और मेनी इन द फॉलोइंग। मच और मेनी कहाँ यूज होता है? मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ और मेनी यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं, डिड यू बाय डैश स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स इटसेल्फ टेल्स कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। बुक्स, वी कैन काउंट द बुक्स, सो वी कैन यूज हियर द टर्म मेनी। How dash water is left in this tank? Water is uncountable, hence we have to use here much word. They do not have dash houses. Houses can be counted, so we can use here many. Raj is fond of reading books, but he has not brought dash books with him. हम फिर से देखते हैं, बुक्स वर्ड काउंटेबल है, एस लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे many लिखेंगे। Next, how dash money you want. Money is uncountable word, that's why we are writing here much. How dash students have their textbooks. Students, again a countable noun, so here we are writing many. So much और many में basic difference यही है। much कब यूज करेंगे? जब हमारा नाउन uncountable होगा। many कब यूज करेंगे? जब हमारा नाउन countable होगा। Thanks for watching. These examples are being taken from Flight English Reader CG Board Class 10th, Unit number 1, Reading number C, from page number 21 onwards. For more details, you can download the PDF from the link provided in the description box. Thanks a lot for watching. So don't forget to watch our upcoming video on articles. Thank you.